Hello and welcome to the 14th episode of Preparation Parley. Let's get to questions directly. The first one, how to avoid these discussion groups which leads us to nowhere but not being part of them leaves a FOMO. Uh, while this is a concern that I'm fairly certain a lot of people have, but there are also people who enjoy the banter that happens on the group. If you fall in the category of people who does not enjoy being part of the groups, see, one way you can do this is every group has some fun characters who will spend time on random things, and then people will crack jokes and come up with wonderful things to waste time. Either choose groups that have very little waste conversations happening, or if at all you're going to be part of multiple groups where something more relevant is happening, just identify what is the purpose of being part of these groups. If the purpose is to get information about regular updates and regular things that are happening, being part of 2-3 good groups should be more than enough. Don't be part of extremely random groups, especially those groups which are designed to simply push marketing content. मेरा कोर्स, मेरा क्रैश कोर्स, मेरा लास्ट माइल कोर्स, मेरा ये कोर्स, मेरा वो कोर्स. Additionally, most groups also have this feature where they have a channel, wherein within the channel they only the administrator gets to post and only the relevant posts go there. So if at all you feel like FOMO ki is channel pe whoever the official admin is, that person is posting something and I will miss out on it, what you can instead do is follow the channel, don't really follow the group. Or फिर by means of channel you get everything. Additionally, एक प्यारी चीज बताते हैं कैट प्रेप को लेके. एवरी कैंडिडेट, स्मार्ट और नॉट सो स्मार्ट जो भी है ना, सबको पता है क्या करना है. बट अभी वो वाला गेम चल रहा है ना, 2 महीने में 99 परसेंटाइल कैसे पहुंचे, बेस्ट वे टू एनालाइज मॉक्स, बेस्ट वे टू दिस दैट, दुनिया भर की बातें. द फनेस्ट एस्पेक्ट देयर इज, मतलब 2 महीने में ही अगर 99 परसेंटाइल आ रही थी तो भाई क्यों किया हमने 6 महीने 8 महीने की तैयारी. मस्त 2 महीने ही पढ़ाई करते. Avoid all that nonsense. More than groups, honestly, more than groups, Telegram groups or WhatsApp groups, I feel a bigger concern right now is all the YouTube videos that will get pushed to you by recommendations. अलग अलग YouTube चैनल, अलग अलग वीडियोस अबाउट कैसे स्ट्रैटेजी, क्या ये वो फलाना ढिमकाना. You have to be a little more disciplined. If at all you cannot leave the groups, there is a strong pull. नहीं, हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा ही I feel FOMO. Then do this. Turn these groups on silent. Turn these groups on silent and allocate a dedicated 1 hour slot in your day. रात के 9 बजे या रात के 10 बजे, whatever time. उस टाइम पे जाके you open that group. First you mute the group, disable notifications. Then at 10 o'clock you go and you go through the entire groups. You check whatever new notification, new post have come in. If that is great, then great. कुछ काम की चीज आई है तो बढ़िया, नहीं तो move on. Do not fall into the trap of वो जो हमारा human tendency है ना, we love conflict. किसी ने कुछ बोला, उसके बाद किसी ने कुछ बोला, और फिर अब मन कर नहीं, पढ़ते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या चल रहा है. अगर कुछ काम का होगा तो एनीवे ग्रुप के अंदर हाईलाइटेड रहेगा. पिंड मैसेज फीचर देख लो. बियॉन्ड दैट अलग ही लाइट वाला काम है. फालतू के 15 ग्रुप्स पे तो ऐसे भी रहने का कोई पॉइंट नहीं है. अपने काम से काम रखो, चल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो जैसे बी स्कूल नोटिफिकेशन कब आ रहा है एंड कौन सी का एप्लीकेशन खुल गया एंड एवरीथिंग. अ वेरी गुड रिसोर्स देयर इज IMS हैज दिस एप्लीकेशन ट्रैकर. सो फॉलो दैट ट्रैकर. एवरी 2 days, every 3 days जाके देखना. Any notification, anything that has come, it would be explained in detail there. So that takes care of all the notifications that you need to get. अब किसी ग्रुप पे अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है और आप प्रैक्टिस मटेरियल करना चाहते हो तो वो चैनल से आ रहा होगा. डायरेक्टली ग्रुप पे पोस्ट रेयरली कोई करता है. सो फॉलो द चैनल दैट दे हैव. दैट वुड बी ओके. ब्रॉडकास्ट चैनल वी यूजुअली कॉल इट. सो बियॉन्ड दैट, देखो तुम्हें भी पता है द क्वेश्चन स्टेम्स फ्रॉम द नॉलेज दैट इट इज नॉट फ्रूटफुल. So, okay, if it is not fruitful, let us avoid it. There is no work around it, no. मन को मनाना पड़ेगा. It's like
वेट लूज करना है तो डाइटिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये हालत नहीं होनी चाहिए कि नहीं चलो ये खाना मतलब हम भर भर के बटर और घी निपटाते रहते हैं एंड देन आई ऑल्सो गेट टू लूज वेट। डजंट रियली वर्क दैट वे। ओके, second question. Is it a good idea to go for a second MBA from a top tier institute after 3 years of work if your first MBA was from a tier 3 college as a fresher? दो पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। एक तो भाई साहब आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि इवन इफ यू गो टू अ टियर 3 कॉलेज एज अ फ्रेशर, सिग्निफिकेंट पैसा लगा होगा आपके एमबीए में। साथ के साथ, see, the advantage that a normal B school, as a more prestigious B school has over a comparatively less prestigious B school, is the early opportunities। जब आप शुरू कर रहे होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, जब भी आप शुरू कर रहे हैं वर्कफोर्स में घुसने से पहले, at that time the kind of opportunities you get would be limited by the kind of companies that visit your campus. But once you have worked in the industry for 3 years, तब फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद आपका काम बोलता है, उसके बाद what you've done in terms of work and everything। I know of a manager in Paytm who is managing a bunch of Ahmedabad and Bangalore and Calcutta kids in his team, and he himself is a 2011 IMT Nagpur MBA। सो ऐसा नहीं होता कि टीयर 3 कॉलेज से चले गए तो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। यस, दी likelihood of success is higher with better B schools, लेकिन ये वाला काम जो हम 2 साल और लगाते हैं फिर से पैसा इन्वेस्ट करते, इट वुड ट्रांसलेट इनटू आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अच्छा, दिस इज अज्यूमिंग यू आर करेंटली इन दैट स्टेट। एक इसका दूसरा वर्जन ये भी दिमाग में आया था, कोई आदमी ये दिमाग लगा रहा है इस बार का कैट तो बेकार होने वाला है, बट बी स्कूल तो ज्वाइन करना ही है, तो ऐसा करते हम टीयर 3 से ही कर लेते हैं इस साल का एमबीए। पढ़ाई बेसिकली मीन्स टू अवॉइड पढ़ाई फॉर दिस साइकिल। अभी पढ़ाई लाइट ले लेते हैं, जो भी कॉलेज मिलेगा चले जाएंगे, और फिर 3 साल काम करने का फिर आएंगे फिर से अच्छा एमबीए करने के लिए टॉप टीयर इंस्टीट्यूट में। भाई साहब, अगर आप वो माइंडसेट से, द सेकंड वर्जन इज द वन दैट यू आर गोइंग फॉर, कि अभी हम लाइट ले लेते हैं और बाद में हम फिर से पढ़ के फिर से अच्छे कॉलेज चले जाएंगे। देखो, बी स्कूल जाने के बाद ऐसा तो होगा ही नहीं कि तुम्हारी एट्रीब्यूट्स एंड पर्सनैलिटी एंड क्वालिटीज बदल जाएंगी। अगर तुम अभी एफर्ट अवॉइड कर रहे हो तो बी स्कूल जाने के बाद एफर्ट अवॉइड कर रहे होगे, नौकरी घुसने के बाद एफर्ट अवॉइड कर रहे होगे। तो फिर एनीवे यू डोंट delay success, you go after it. If it doesn't come to you, that then you look for workarounds. But if you're going to delay working for something, because it takes too much effort right now, even later it will take as much effort, and then you're not going to do it anyway, because it is not a problem of lack of ability, it is a problem of bad attitude। अगर ये सेकंड वाला वर्जन है भाई, कि तुम इस साल कैट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि the first version I'm unwilling to believe कि first version वाला होगा, because this is a question that would not come from somebody who is following my channel। मेरा चैनल बस एस्पिरेंट लोग ही फॉलो करते हैं मेरा चैनल एस्पिरेंट लोग भयंकर जुलाई टू नवंबर फॉलो करते हैं, उसके बाद मेरा चैनल डाइज ऑन यूट्यूब, किसी को मतलब नहीं है उससे, क्योंकि उसके बाद सबको पसंद आता है परसेंटाइल प्रिडिक्शंस देखना और क्या देखना। जब जुलाई अगस्त सितंबर में सबको रियलाइज होता है कि हाँ नहीं भाई, ये सारी बातें साइड रखो, पढ़ाई करनी है अब, तब फिर आते हैं हमारे चैनल पे, प्रैक्टिस वैक्टिस करते हैं, बढ़ जाते हैं। इवन इफ यू गो टू सोशल ब्लेड एंड एवरीथिंग, इफ यू लुक एट द मंथली व्यूज दैट माई चैनल गार्नर्स, द जुलाई टू सितंबर या जुलाई टू नवंबर वाला पीरियड इज द वन वेर आई गेट अ लॉट ऑफ व्यूज और उससे पहले तो भाई साहब barely any views। and fun thing is at other places on other channels, जुलाई टू नवंबर इज द पीरियड जहाँ पे उनका व्यू में लल आता है, और उसके बाद भाई साहब जैसे ही वो परसेंटाइल प्रिडिक्शन स्ट्रैटेजी वीडियोस, वही हैं वीडियोस जो बिकती हैं, देख लेना। वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट। ये जो सेकंड वर्जन ऑफ द क्वेश्चन है या सेकंड इंटरप्रिटेशन है, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट यू आर चूजिंग टू डिले एफर्ट सो दैट इस साल हम खराब बी स्कूल भी चले गए तो हम बाद में प्लान करके चले जाएंगे। जैसे समझो, तुम्हारा एटीट्यूड नहीं बदलने वाला कि तुम बाद में प्लान करके अच्छे कॉलेज चले जाओगे, साथ के साथ पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। टीयर 3 कॉलेज भी अगर जा रहे हो तो मोटा पैसा ही है। देखो, if you had somehow landed into a situation where you've gone to a tier 3 college and then you see abject lack of opportunities, and then you feel नहीं मेरे को करना चाहिए फिर से, तब फिर देख लो जो उपयुक्त लगे। बट this is not a path that I've seen anyone take. There have been instances, or I know of people who studied in a college for 1 year
and then have gone on to a better college in the next year, and that is still justifiable. The fact that after 3 years of work you want to do a second MBA, it would mean, आई एम अज्यूमिंग यू मीन फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूट. अगर आप फॉरेन वॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन में काम करना है, तब ऑफ कोर्स वहां का एमबीए करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के एमबीए एज रेस्पेक्टेबल एंड एज क्या बताएं, अच्छा नाम है उसका, वहां पे जाने के बाद यहाँ वाले एमबीए को उतनी इज्जत नहीं मिलती. अगर फॉरेन वॉरेन जाने की बात है तो सोच सकते हैं, लेकिन भारत में ही रह के भारत में ही काम करना, एंड देन यू आर वी आर गोइंग फॉर सेकंड एमबीए कि मेरा ब्रांड बढ़ जाएगा तो मेरे को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी. ऐसा होता नहीं भाई, ऐसा होता नहीं है. I don't know of anyone who has done or who has taken the path that you're advocating for. ठीक है, चलेगा. Last question. uh Someone says do sectional, someone says do mock, someone says past year papers. What exactly to do? यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्रीफ इंसाइट समझना क्या चल रहा है. हम तो अपने लोगों को अब बोल रहे हैं कि भाई मॉक्स और सेक्शनल्स दो, पास्ट ईयर पेपर्स एकदम आखिरी टाइम में गो थ्रू कर लेना, अभी पास्ट ईयर पेपर मत देखना. somebody else will say sectionals दो या मॉक, ये जो भी कहानी अलग अलग लोगों की चल रही है, ये करना तीनों है अपने को. The question that you're asking is someone, मतलब you're treating them as three disparate activities. What you've not mentioned is someone says do revision, because that is the most critical part. Revision is a constant theme. जो तीनों जो whatever other activity you do, revision चलते रहना चाहिए. Right now, ideally in the week, you should be dedicating some 3 to 4 days for your revision. And when I say 3 to 4 days, I mean सारे एरियाज, मतलब क्वांट का भी, डीआईएलआर का भी, वीएआरसी का भी, रिवीजन स्लैश प्रैक्टिस. क्योंकि क्वांट में रिवीजन कर भी सकते हो, डीआईएलआर में क्या रिवीजन करोगे, वहां पे प्रैक्टिस ही खतरनाक होगा. वीआरसी में क्या रिवीजन करोगे, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस ही खतरनाक होगा. यस, यू हैव टू डू दैट. उसके बाद देयर हैज टू बी टेस्टिंग, डिपेंडिंग ऑन व्हाट level you're at, whether you take a sectional and a mock per week, or you take 2 mocks and sectionals per week, or you only take 2 mocks per week. वो तो access and availability की बात है. But see, by means of suggesting to you कि sectional दे दो या mocks दे दो या past year papers कर लो, past year papers के लिए my personal advice would be अभी hold off करो, आराम से नवंबर आने दो, फिर past year papers करना. आराम से नवंबर आने दो, फिर पास्ट ईयर पेपर्स करना, उससे पहले अभी मत करो. इट विल बिकम, मतलब बहुत दूर है एक्चुअल कैट से फॉर यू टू लुक एट पास्ट ईयर पेपर्स. दे आर वंडरफुल, दे आर अ वंडरफुल रिसोर्स, यस. But sectional mocks and revision, they have to happen simultaneously. Revision has to be the constant, and then the test taking on the other days. जिस दिन टेस्ट टेकिंग है उस दिन कम रिवीजन, बट रिवीजन डज नॉट, और रिवीजन स्लैश प्रैक्टिस डज नॉट गेट अवॉइडेड ऑन एनी डे. हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करना ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मोर जेनेरिक एडवाइस फॉर somebody who is fairly well prepared, if you think you are in the camp of people who is going to get a good score and everything, भाई लोग थोड़ा अखबार वखबार एंड न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग ट्रैक करना शुरू कर देना. इफ एट ऑल यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू एंड अप इन द इंटरव्यू स्टेज, if at all you are confident, then you should ideally start beefing up on your current affairs का knowledge, and not for the IFT exam जिसके अंदर जीके का सेक्शन है, और the एग्जैक्ट एग्जाम जिसके अंदर जीके का सेक्शन है. more for the purposes of इंटरव्यू के टाइम पे there is very little time available and you have to prepare a lot. There is a lot of soul searching that you have to engage in. There are a lot of global issues that you have to prepare for. So अभी से हल्का फुल्का काम से you, it will serve dual purpose. Article reading अगर करना चालू करोगे, curated articles, not random articles, curated articles, you will have to identify your own source. And when I say articles, I mean news articles. Curated news articles अगर आप पढ़ रहे होंगे, आपका जीके भी थोड़ा सा बन रहा है एंड आप रीडिंग भी कर रहे हैं, सर्व्स बोथ पर्पसेस. डू नॉट काउंट दिस टाइम एज योर कैट प्रेप. ये मत करना सुबह मैंने 1 घंटे आर्टिकल्स पढ़ा है तो आज मेरा वीआरसी का काम हो गया. दैट इज नॉट कैट प्रेप. वीआरसी का काम इज वीआरसी का काम. यू वुड हैव टू डू आरसी प्रैक्टिस, यू वुड हैव टू डू वीए क्वेश्चंस, ओनली देन इज दैट वीआरसी का काम. बट आर्टिकल अगर पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा.
सो अभी सेक्शनल्स करे या मॉक्स करे या पास्ट ईयर पेपर करे या अच्छा इसके अंदर ये भी था, ऑल्दो आई हैड टू एडिट दैट ड्यू टू स्पेस, डेली क्विजेज और लास्ट माइल और रेस टू 100,000, पता नहीं क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज है. If it is not sectional mocks, past year papers, revision, these are non-negotiable. उसके बाद all the other initiatives that you feel like मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. See, it would be very difficult to make a judgment call about everything. What you can do is एक आदमी को खोजो, one person और one institution या one whatever offering that you have, एक को खोजो, उसका टॉप टू एंड कर दो, जिसपे आपको भरोसा उसका टॉप टू एंड तक सारा काम कर दो और फिर लाइट ले लो. ये जो द लास्ट क्वेश्चन हैज वेरी सिमिलर टोन्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फोमो वाली बात है, क्या पता उस वाले रिवीजन क्लास में कुछ एक्स्ट्रा बता दे. कोई नहीं बता रहा यार कुछ एक्स्ट्रा. Everybody, see, I'm not saying that some revision classes are worse than the others, maybe they are, we don't know, but the amount of effort it would take for you to cover everything from multiple resources, the returns that you would get for it is not worth it. लाइट लो, एक चीज को टॉप टू बॉटम अच्छे से कर डालो, दैट इज मच बेटर देन हर चीज में थोड़ा 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 करो. क्योंकि जब व्हेन यू डू थोड़ा थोड़ा, वो रहता है ना पार्शियल नॉलेज, व्हेन यू हैव पार्शियल नॉलेज इज अकम्पनीड बाय डाउट. हर बार अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा किया था, पर उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ये शॉर्टकट बताया था, उन्होंने ये फालतू की हरकतें मत करो. एक एक चीज पकड़ो. इफ यू वांट टू डू लास्ट माइल वाला कोई काम कहीं पे, डेली क्विज वाला काम कहीं पे, पिक अप वन थिंग एंड डू दैट इन एंटायरिटी. अगेन इफ यू फील लाइक नहीं ये उपयुक्त नहीं है तो दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह कर लो. मिसिंग आउट ऑन सम ग्रुप का कंटेंट और मिसिंग आउट ऑन सम लास्ट रिवीजन का पूरा प्रोसेस इज नॉट दैट ह्यूज अ डील. एडिशनली यही समझना, ये जो रिवीजन एंड एवरीथिंग है, all of these activities by themselves are fairly useless if they are not accompanied by your own self revision, your own notes, your own insights that you have developed throughout the year. It is not going to be कि भाई आज तक हमने कुछ नहीं करा और अब अचानक से हम रिवीजन क्लास देख लेंगे 5 तो मेरा टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन निकाल पाएंगे. मोस्ट लाइकली व्हाट इट वुड सिंपली डू इज इट वुड एक्सपोज यू टू सर्टेन इजी क्वेश्चन टाइप्स that you would have been able to do anyway, लेकिन अब ये क्लास करके लगेगा ओ अब हम ये भी कर सकते हैं. That class hasn't really taught you. You already had that ability. It is just that they showed you that question prior to the exam and you are happy now. Ability बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है. मतलब यही समझो सिंपलेस्ट टर्म्स में 15,000 काम नहीं कर रहे हैं. इवन इफ यू आर लेट्स से अ क्रिकेटर है आप, you will rarely ever find a cricketer who is exceptional at all skills. कोई स्पिन बॉलिंग अच्छी खेल लेता है और फास्ट बॉलिंग ठीक ठाक खेल लेता है, कोई फास्ट बॉलिंग अच्छी खेल लेता है, कोई स्पिन बॉलिंग ठीक ठाक खेल लेता है. किसी को चाइनामैन में दिक्कत है, किसी को बाउंसर से दिक्कत है, कोई इंडियन पिचेस पे रन बना लेता है, कोई ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे रन बना लेता है, कोई डिफेंस बहुत अच्छा करता है, कोई अटैक बहुत अच्छा करता है. नोबडी इज अ परफेक्ट कैंडिडेट. द प्रॉब्लम विथ our generation or our क्या बताएं, the human race in entirety is we don't want to do the stuff that we do with absolute care. We want to do everything without a lot of effort. जल्दी जल्दी काम हो नहीं हो रहा भाई. बहुत सारे लोगों के लिए तो यही हालत है कि यू वुड हैव टू एक्सेप्ट द ग्रिम रियलिटी कि नहीं हो रहा तुम्हारा कैट से पहले सिलेबस खत्म. स्पेशली दोज हु हैव स्टार्टेड रिसेंटली, जिसके ऊपर बात भी करी थी पहले कि भाई नहीं हो रहा तुम्हारा कैट का पोर्शन खत्म. बट इंस्टेड ऑफ रशिंग थ्रू थिंग्स, अच्छा इसके अंदर ये फॉर्मूला रहता है, इसके अंदर ये फॉर्मूला रहता है, वर्सेस यू पिकिंग इट अप, ये इनसाइट्स है, ये फॉर्मूला है, फिर चलो अब इसके अंदर हम 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. In the second version, of course, you're not completing all topics, but the likelihood of you being able to latch on to low-hanging fruits in the exam is much higher compared to you simply jumping from one idea to the other without solving questions, without processing, without uh, without practicing. Nothing will ever work. That is all for this episode. Hopefully, you learned something. Okay, bye.